Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss with the continuation of the previous lecture, and that was about isomerism, and we have discussed about optical isomerism, how optical isomers are formed, all that. So it is a continuation of that topic actually, and today we are going to start with the discussion of the stereoisomerism, what are geometrical isomerism, what are cis, what are trans, and all of these things we will discuss in detail in this lecture. Okay, so let's we start. First of all, the definition of stereoisomerism. Stereoisomerism is the arrangement as it is written here. Let me एक मिनट इसको साइड पे कर लूँ मैं ताकि आप लोगों को नज़र सही से आ जाए. ओके, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल हुज कनेक्टिविटी रिमेन सेम बट देयर अरेंजमेंट इन दैट इज़ द डेफिनेशन विच वी हैव सीन yesterday. Again it is repeated that this is stereoisomerism, and explanation requires कि आपके पास there are two types of stereoisomerism, diastereoisomerism, and इसको हम dia क्यों कह रहे हैं, because it include two types of isomerism in that. It is a cis and trans isomerism, and then we have optical isomerism, also known as enantiomers, and chirality. And these two topics we what is chirality and what is optical isomerism, this is what we have studied yesterday. So it is just a definition written here. Now this is the new thing, cis and trans isomerism. This is the thing which we are going to study in detail. Now what are cis and trans isomerism? They occur when a double bond, this is the main point, they occur when a double bond is present, because the pi bond is involved in the, means that we are not going to discuss the cis and trans isomerism for the single bonds. There must be a double bond included or involved for cis and trans isomerism. This is the condition, or maybe you may be asked what is the condition for cis and trans isomerism. So do remember that double bond is mandatory. It is necessary to form a cis and trans isomerism. Like we can say in alkanes there is no cis and trans isomerism, or automatically there is no stereoisomerism phenomena happens in the alkanes. Okay, a good example is 1,2-dichloroethene, and that is the example which okay, fine, I will draw the structure of these two this compound at the last, C2H2 Cl2. फाइन. सो लेकिन अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कल हमने पढ़ा है. ऑप्टिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म व्हेन asymmetric centers are present. For example, a carbon with 4 different groups, and I am sure you know the another word for that carbon having 4 different functional groups, and that was, this is written also, it is also written here, and we have yeah, here it is chirality. Fine. So this is the property which we have discussed earlier, so it is repeated again. It is also called enantiomers, are two optical isomers that are reflection of each other. Like आप लोगों को याद हो, अगर कल हमने पढ़ा था कि आप मिरर इमेज उनकी अगर देखेंगे तो लगते वो सेम हैं, बट व्हेन यू सुपर इम्पोज दैम सो दे आर टोटली डिफरेंट. एंड उसके अंदर हमने हैंड्स की एग्जांपल जो है वो कल हमने डिस्कस की थी. फाइन. सो दिस इज़ व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. दिस इज़ द टॉपिक. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कल पढ़ा, आज हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे. ज्योमेट्रिक isomerism, also called cis and trans isomerism, there are two names for that. Results form a restriction in rotation about double bond. Like how we are going to form that. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर आपको एक डायग्राम सी बना के दिखाऊँ, इस तरह से मैं समझा देती हूँ आपको. यहाँ पर मैं बना देती हूँ छोटी सी, कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसका डबल बॉन्ड है, फाइन, और इसके यहाँ पे कुछ चीज़ लगाई है, यहाँ पे कुछ चीज़ लगाई है, और अगर मेरे पास ये कोई चीज़ है, ये है और ये है, अगर आप लोग इसको रोटेट कराना चाहोगे तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एंड पर आपने किसी, ये धागा लें, सपोज़ करें धागा है या कोई स्टिक है, उसके एक एंड पर आपने एक चीज़ को लगा दिया और उसको आप मूव करा रहे हो, इस वाली साइड को आप मूव करा रहे हो स्टिक से. यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है, और बॉल्स ही हैं, सपोज़ करें ये बॉल्स हैं ये बॉल्स हैं, और बीच में एक स्टिक है, और आपने इस साइड से, मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको, इस साइड से आपने अपने हाथ से पकड़ा है, ये कलर सही नहीं है, ये कलर वाइट लेते हैं, इस साइड से आपने पकड़ा बॉल को और इसको घुमाना शुरू कर दिया, तो ये इजीली रोटेट होगा. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल बॉन्ड. फाइन, दिस इज़ पॉसिबल. अच्छा, एक वक्त आएगा अगर ये स्टिक ज़्यादा मजबूत नहीं होगी तो ये ब्रेक हो जाएगा. फाइन. ओके, नाउ कम टू दिस वन, दिस एग्जाम्पल. अगेन द सेम, I'm just changing it into balls. एंड सपोज़ करें पहले हमने सिर्फ एक स्टिक से इसको, इन दोनों को पकड़ रहे थे, एक साइड से इसको रोटेट करा रहे थे, एक साइड से इसको रोटेट करा रहे थे. अब इस केस के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा मेरे पास डबल बॉन्ड है,
और मैं इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रही हूँ, बॉल है या जो भी चीज़ दोनों एंड्स पे लगी हुई है, व्हाट डू यू थिंक विच इज़ ईजिली मूवेबल? ईजिली मूवेबल होगा, टूट जाएगा मूव इस तरह। और इसके अंदर जो रोटेशन होगी वो कैसी होगी? वो बहुत माइन्यूट होगी। ऐसा नहीं है अच्छा क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? द आंसर इज़ नो। आप रोटेट कराने की कोशिश करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो रोटेशन होगी, ये जो अपने आप को मूव कराएगा, वो बहुत थोड़ा सा मूव कराएगा। और अगर आपने अपने हाथ से यहाँ से इस साइड से पकड़ते हो और आप ये साइड मूव ये साइड मूव कराने की कोशिश करते हो, डबल स्टिक से कोई चीज़ जॉइंटेड है और ये साइड, तो क्या होगा? अगेन छोटी सी बिल्कुल हल्की सी मूवमेंट होगी, अपनी पोजीशन ये हल्की सी चेंज करेगा और ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दिस डबल बॉन्ड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। इट विल नॉट अलाउ इट टू ब्रेक, it will not allow it to change itself at a maximum level. Fine. So जो एक हल्का little bit change आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए पहले इसकी पोजीशन ये थी, सीधे सीधे यूँ थे, और जब आपने इसको रोटेट कराया तो इसकी पोजीशन के अंदर थोड़ा सा ये यहाँ से इस साइड पर आ गया। आपने इसको मूव कराने तो हल्का सा इसके अंदर टिल्ट आया है, यहाँ से पकड़ के कर रहे हो तो यहाँ, तो ये जो बना, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब जब आपने हल्का सा मूव करवाया तो थोड़ी सी इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। दिस इज़ isomerism. This is geometrical isomerism which is formed, and that is the reason कि हमने कहा कि अल्केन्स के अंदर ये नहीं होता। अल्केन्स के अंदर आप ज़्यादा मूव कराओगे, एक मॉलिक्यूल एक साइड पे, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी साइड पे, और आप उसको मूव कराने की कोशिश करोगे, सो द बॉन्ड विल ब्रेक। सही है। अब मतलब एक सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा होता नहीं है कि हम एक कार्बन मॉलिक्यूल को उठा के पकड़ के बॉल की तरह घुमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि एक्चुअल प्रैक्टिस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट है क्या। आपके माइंड में एक पिक्चर बनाना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर जब हम बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपने कह दिया कि इधर डबल बॉन्ड वाला जो केस है, डबल बॉन्ड वाले केस में हमारे पास हमने कहा कि जैसे हमने बॉल्स की बात की कि आपने दोनों साइड पे अगर बॉल्स बनाई हुई हैं तो वहाँ पर आपके पास मूवमेंट कैसे होगी और कैसे नहीं होगी, और सिंगल बॉन्ड्स के अंदर ये चीज़ पॉसिबल होती ही नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स द डेफिनेशन, जो आपकी, मैं जैसे आपको पहले भी कहती हूँ कि स्लाइड्स मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहती हूँ कि क्या है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अब इसको देख लें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये इसका सेकंड नेम है, एमसीक्यूज़ के अंदर ये पार्ट आ सकता है, और कहते हैं कि रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड। दिस इज़ एक्चुअल अ मेन थिंग। इट इज़ दीज आइसोमर्स आर फॉर्म ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड और अबाउट अ सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड्स के अंदर भी होता है, बट इन ओपन चेन्स के अंदर नहीं होता। और द कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा, ये बात हमें पता है कि डबल बॉन्ड्स हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दे कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एंड ऑल दीज थिंग्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और वो आप लोग पहले से आप लोग पढ़ लें इसको, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या बातें कर रहे हैं। जो नई चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। और रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ देयरफॉर रिस्ट्रिक्टेड, एंड वाई इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड? बिकॉज वी नो दैट डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर. That's why the restriction is restricted. Okay, now comes the next slide. The restriction of rotation of about the carbon carbon double bond is responsible for geometrical isomers. Again the point is repeated, repetition हो रही है आप सेम पॉइंट की। geometrical isomers definition, अच्छा यहाँ जो न्यू पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ सबसे पहले तो definition is important. You will read this definition. Isomerism due to the difference of special arrangement of group. Special arrangement का क्या मतलब है कि स्पेस के अंदर जो थोड़ी सी चीज़ की मूवमेंट की वजह से, स्पेशल SPATIL, जो स्पेस के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट की वजह से आइसोमर बन रहा है, उसको स्पेशल का वर्ड दे रहे हैं ग्रुप, एंड दिस हैपन्स इन द डबली बॉन्ड कार्बन एटम्स. फाइन. नाउ कम्स वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमर्स विच आर फॉर्म्ड हेयर. दिस इज वन इज अ सिस्ट आइसोमर्स एंड सिस, एंड दिस वन इज ट्रांस आइसोमर. हेयर कम्स द मेन डिफरेंस. बहुत आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगी. नाउ लुक एट दिस. कार्बन कार्बन ये हैं, the both alkyl radicals are present at the same side. If it is not mandatory that we will be having only methyl radical, we can be having anything, कोई भी functional group हो सकता है, if they both are present on the same side. This is the example of cis. And for example, if I just change the position of this alkyl radical from here to there, so that would be, इधर लगा दूँ मैं तो ये चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होगा तो इसको हम कहेंगे this one. This is trans. फाइन. और अगर हम इसको देखते हैं, ये आप देखिए तो ये है कि आपके पास जनाब, दिस इज़ द, इफ़ यू रिमेंबर द नॉमेनक्लेचर, 1 2 3 4, दिस वन इज़ 2 ब्यूटीन, और इसका प्रॉपर नाम क्या है? दिस वन इज़ ट्रांस 2 ब्यूटीन, दिस वन. ओके
दोनों ब्यूटीन्स हैं, 2 ब्यूटीन्स ही हैं, बट एक को सिस आइसोमर कह रहे हैं, एक को ट्रांस आइसोमर कह रहे हैं. बोथ हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट अरेंजमेंट इनकी डिफरेंट थी. और वो डिफरेंट क्यों है, द रीज़न इज़ गिवन हेयर. ओके, नाउ कम्स फ्री रोटेशन is possible in free rotation is possible in alkanes but not in alkenes, and the reason we have discussed it. Again it is repeated here. This is alkanes जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड, वाई इट इज़ पॉसिबल. और अगर फ्री रोटेशन आप करवा रहे हो, फ्री रोटेट कर रही है वो चीज़, ईजिली मूव हो रही है, तो सेम मॉलिक्यूल है तो वहाँ आइसोमर्स फॉर्म नहीं होंगे. ठीक है, वो दोनों साइड सेम ही मूवमेंट हो रही है, उस कहीं से भी घुमा लें वो ईजिली मूव हो रहा है. जो ये वाला केस है सिस एंड ट्रांस, ये डबल बॉन्ड्स आपके पास हैं, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है. तो इसके अंदर आपको वो दोनों की एग्जांपल सिस और ट्रांस की, और यहाँ पर वो दिखा रहे हैं ये आपके पास एक दोनों अपोजिट साइड्स में हैं, ये दोनों अपोजिट साइड्स में हैं. तो ये क्या है, ट्रांस की एग्जांपल है और ये सिस की एग्जांपल है. और यहाँ पर बीच में आपके पास क्या मौजूद है जनाब, हेयर वी हैव डबल बॉन्ड प्रेजेंट. सो दिस इज़ नो रोटेशन अबाउट दिस डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड की रोटेशन नहीं हो रही है, हो नहीं रही है. तो इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत जो मूवमेंट होगी यहाँ पर और थोड़ी बहुत जो मूवमेंट होगी यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइसोमेरिज्म. फाइन. अच्छा, इसको अब थोड़ा सा देख लें इसकी स्लाइड को. देयर इज़ अ फ्री रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. फ्री है तो फ्री होगी तो आइसोमर्स नहीं होंगे, स्टीरियो के अंदर नहीं जाएंगे हम. फ़ाइन. और अगर नहीं होगी तो वहाँ पर हम लोग सिस और ट्रांस के केस के साथ बात करेंगे. नाउ इज़ इट पॉसिबल टू इंटर कन्वर्ट दिस सिस आइसोमर्स इनटू ट्रांस आइसोमर? येस, इट इज़ पॉसिबल, बट टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड. एंड व्हाट इज़ द टेम्परेचर? If either isomer is heated at a high temperature or it absorb light, so then it is possible to convert the cis isomers into trans isomers like it is given here. For example, this is the example of, what is this? This is the example of cis isomer. We just gave it to heat, it just started converting into like this. Look at this and this. So ये क्या हुआ, the position is changed. इस मिथाइल ने अपनी position change कर ली, that thing, और reform होके ये कुछ sorry you can't see this, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, बट दिस इज़ द थिंग. ये आपके पास क्या होगा, दिस ये बन गया है मिथाइल. ठीक है, और ये नीचे स्ट्रक्चर उसी चीज़ का लिखा हुआ है. उस चीज़ को उन्होंने कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन लिखा, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन लिखा हुआ है. लेकिन मेन अगर आप स्ट्रक्चर ये बनाना चाहेंगे ना तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन. दीज आर द पाई बॉन्ड. एक्चुअली ये पाई बॉन्ड्स हैं, PZ ऑर्बिटल. ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा. तो ये है interconversion. Now comes trans configuration is more stable. Now this is important and this is the thing जो कि reasons में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. Why trans configuration is more stable? It is due to steric repulsion as it is written here. What is steric repulsion? Now see, if both of the powerful मैं इस सेंस में कह रही हूँ because here is a hydrogen and we know very well that hydrogen is the lightest element known, and if we have two different rather than hydrogen atoms are, कोई भी आपके पास alkyl radical for example here are attached, so they will both start attracting each other, repulsion create करेंगे. So answer is obviously they will create repulsion. So they will create repulsion, so it will क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो इट मीन्स के द बॉन्ड इज़ नॉट स्टेबल. फाइन. इन व्हाट केस? इन सिस केस. सो सिस केस में क्या है हमारे पास, द बोथ अल्काइल रेडिकल्स आर प्रेजेंट द सेम साइड एंड दे आर गेटिंग, मतलब दे आर क्रिएटिंग रिपल्जन टू ईच अदर. सो दैट्स वाई इट इज़, इसको स्टेरिक रिपल्जन कहते हैं. सो दिस इज़ less stable and this is more stable. and इसके अंदर क्या होगा, because this is alkyl radical, this is hydrogen, and there is no any kind of repulsion that hydrogen doesn't do this, कि ही हाइड्रोजन नहीं इससे लड़ाई करता है या हाइड्रोजन नहीं इससे पंगा लेता है इन सिंपल. सो ये आपके पास है. सही है. और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हमारी स्लाइड्स पे क्या लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं. ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स और फंक्शनल ग्रुप्स try to distance themselves as far as possible. रीज़न वही है, बात वही है जो मैंने बताई है. इन्होंने इसको वर्डिंग में लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें. और दिस रिजल्ट्स इन लोअर एनर्जी इन ट्रांस कॉन्फिगरेशन एंड स्टैटिक रिपल्जन इज़ फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. इट राइजेज फ्रॉम रिपल्जन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एटम्स. और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ज़ाहिर है जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी दे वुड बी हैविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. ऑल एल्कीन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल isomerism. Now what is written here before starting reading these slides मैं आपको बता देती हूँ. Now see, is this
दिस इज, इफ सबसे पहले द क्वेश्चन इज दिस अल्कीन, येस दे बोथ आर अल्कीन्स, इज दे बोथ आर हैविंग डबल बॉन्ड, फाइन. रोटेशन पॉसिबल है, हल्की सी रोटेशन पॉसिबल होगी, येस हल्की सी रोटेशन पॉसिबल होगी. बट व्हाट इज़ मैंडेटरी? द मैंडेटरी थिंग इज़ कि जहाँ यहाँ पर अल्काइल रेडिकल है वो यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ ही होनी चाहिए जो कि उसको उसके साथ तो मिले. यहाँ पर अब देखिए आपके पास क्या है, वी हैव 3 हाइड्रोजन्स हेयर एंड वी हैव जस्ट 1 अल्काइल रेडिकल, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एक जैसे रेडिकल्स का होना मस्ट है, तभी आपके पास अल्काइल रेडिकल्स अल्कीन्स जो हैं दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इन शॉर्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. रोटेशन मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड इन द मॉलिक्यूल, एज वी कैन सी दिस अप्लाइज हेयर. दोनों साइड पे सही हो रहा है, ये केस सही जा रहा है. बट देयर मस्ट बी 2 नॉन आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन ईच डबली बॉन्डेड. एक साइड पे डिफरेंट होने चाहिए, एक साइड पे सेम, एक साइड पे सेम, या सिस और ट्रांस का चक्कर है वो करना चाहिए, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. सो इट मीन्स कि नॉट ऑल अल्कीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर. नाउ कम्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन 3 हेक्सेन. वी कैन से कि ये इट इज़ एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मतलब ये होता है कि कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, धुंधला है उस चीज़ का बनना. सो वी कैन हैव सिस 3 हेक्सेन, वी कैन हैव ट्रांस 3 हेक्सेन. दिस इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ 3 हेक्सेन. लाइक यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन बोथ वेज. 50-50 चांसेस हैं. अगर आपसे पूछा जाता है कि सिस अच्छा पेपर में आ सकता है कि 3 हेक्सेन के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाइए, तो आप दोनों बनाएंगे, सिस भी बनाएंगे और ट्रांस भी बनाएंगे. ओके, नाउ कम्स सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ मैलिक एसिड एज इट इज़ रिटन हेयर. लुक एट दिस, फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलिक एसिड. ये आपके पास आ रहा है. मैलिक एसिड में क्या होता है कि इफ़ द कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट इज़ अ सिस, एंड इफ़ वी हैव ऑन द अपोजिट साइड, सो इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड. नेम्स हैं बेटा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको इनको याद करना है, ठीक है. इसका मैं कोई रीज़न नहीं बता सकती कि ये आप इसका ये रीज़न है, इसको इस वजह से मैलिक कहते हैं, इसको नो, कोई नहीं, आपने इसको याद करना है नेम्स को, ठीक है. फ्यूमेरिक क्या है, मैलिक क्या है, प्रैक्टिस कीजिए नामों की. एज आई हैव टोल्ड यू कि इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वी डोंट हैव न्यूमेरिकल्स. दिस इज़ द मेन थिंग इन सेकेंड ईयर विच इज़ बिट डिफ़िकल्ट. वी हैव सो मैनी डिफरेंट नेम्स फॉर ऑल द जो भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, और इनऑर्गेनिक में भी हम देखेंगे कॉमन नेम्स अलग हैं, आईयूपैक अलग हैं. सो इट नीड्स प्रैक्टिस. जस्ट स्टार्ट यूजिंग दैम इन योर डेली रूटीन. एक यूज़ करना स्टार्ट करें, मैलिक क्या है, फ्यूमेरिक क्या है, सो दैट आप लोगों को याद हो जाएंगे. अब आ जाइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स. नाउ लुक, साइक्लिक कंपाउंड्स आप लोगों को पता है क्या होता है. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, अच्छा नीचे लिखा हुआ है, मैं चाह रही थी कि आप लोग खुद उसको गेस करते. ओके, ये दे बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, सो दिस इज सिस, एंड दे बोथ आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट साइड, सो दिस इज ट्रांस, एंड दिस इज हाउ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन alkanes. As we have discussed, simple alkanes don't form cis and trans isomerism or geometrical isomerism, but they do. And if you remember one thing, cyclohexane has same general formula as alkenes has. So ये भी एक रीज़न हो सकता है, ये दोनों जो वो बनाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना रहे हैं. और उसके बाद हमारे पास आ रहा है इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सो इज़ दिस पॉसिबल फॉर अस टू से कि ये सिस एंड ट्रांस है. द आंसर इज़ नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी मस्ट बी हैविंग फोर डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. इस तरह के केस में नहीं होगा. इट इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पॉसिबल ही नहीं है. बट इन द सेकेंड केस, इन दिस केस इट इज़ पॉसिबल. सही है. एंड द रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम कह रहे हैं, और ये है कि इसकी एग्जांपल वैसे ये क्या चीज़ बना रहे हैं. आप लोग मुझे जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड मी द आंसर. ओके, नाउ हेयर कम्स द क्विक क्विज. यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज गिवन थिंग्स. आप बनाइए इसका और मुझे दिखाइए कि क्या बना रहे हैं आप लोग. एंड देन वी हैव ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स फॉर ईच कंपाउंड. लेबल सिस एंड ट्रांस. इफ़ नो सिस ट्रांस आइसोमर्स एग्जिस्ट, राइट नन. मतलब आपने, दिस इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, दिस इज़ योर होमवर्क. यू कैन डिस्कस विद मी. सो इट इज़ नॉट असाइनमेंट, डोंट कंसीडर, बट इट इज़ अ क्विज काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आप लोगों को कितना समझ में आया है. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.